फैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड मार्केटअप आई थिंक 15-20 दिन तक पापा को मैंने बताया भी नहीं. अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी जस्ट टू डू दिस. फिर हमने बैठ करके बूटस्ट्रैप पे जाकर एक सिंपल सी वेबसाइट ली, उसको हमने मॉडिफाई किया. वी स्पेंट जीरो ऑन मार्केटिंग इन मार्केटअप, राइट. दे रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि ईशान हम चाहते हैं कि तुम हमारे चैनल को ग्रो कर दो एंड वी वांट टू ऑफर यू फुल टाइम पोजीशन. ओके, राइट. तो अ फुल टाइम पोजीशन दे वर पेइंग मी व्हाट द average package of my computer science 20-25 lakhs in my college, right? So hi guys, welcome back to Curious Stars. Today we have with us Ishan and Saransh. These are the founders of MarketUp. So आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं related to freelancing and how you can build your own agency. So थोड़ा सा एक बार introduce कर दो. बिल्कुल. हाय एवरीवन, आई एम ईशान. आई एम अ यूट्यूब क्रिएटर. आपने देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे. एंड आई ऑल्सो रन अ कंपनी कॉल्ड एज मार्केटअप विद माई co-founder Saransh, in which we help companies grow on social media. Have been running it for the past 2 years. So, 2.5 years. about me. 2.5 years. So I am Saransh. I am also the co-founder of MarketUp. So मैं और ईशान roommates थे back in college, and that is how we started MarketUp. We have been doing it for 2.5 years. We have worked with numerous brands, created a lot of content for a lot of brands and influencers, and created a lot of value for them. Great. सबसे पहले सबसे interesting question. सबसे highest paying brand आज तक कौन सा है? कितने, मतलब brand मत बताना, but how much did you get from a single brand in a single month? In MarketUp? Yeah, in MarketUp, not your YouTube channel. In MarketUp, I think the biggest client was, नाम नहीं बताना है. नाम नहीं बताना. They used to pay monthly 4 lakh rupees. Monthly 4 lakh rupees. At one point, they started at 50K, and they worked with us for 2 long years. And I think by the time they left, they were paying 4 lakh rupees a month. They had the highest LTV, lifetime value, for a client in our journey. That's crazy. Why did they leave? They started their own. In-house कर लिया. They had उन्होंने. pressure from their board and all. They got acquired and all. Got it. So how did you start this? Like क्यों start किया था basically MarketUp? Start इसलिए किया था यार क्योंकि I was back in 2020. I was working in a Bitcoin startup called as Codam. Right. I was working as a marketing manager. तो वहाँ पे I used to run ads. I used to do a lot of different things. Wear multiple hats. And at the end, I realized this thing that I want to do more. I am learning a lot, but मुझे अब और level up करना है, एक अलग level पे जाना है. Got it. So Mehul, who was the founder, he was like, it's time for us to set an office in Delhi and let's start working. मैंने बोला कि I would want to work on something else. तो I started doing that. बहुत कुछ सीखा मैंने Codam से. Really thankful for that opportunity. But उसके बाद I got a lot of opportunities from companies. Okay. Right? जब मेरा चैनल अबाउट 80,000 सब्सक्राइबर्स हिट किया था, तो बहुत सारे जो कोडिंग एडटेक्स थे, राइट, आपने जो देखे होंगे, उनके एड्स देखे होंगे यूट्यूब पर, बाकी जगह पे, दे रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि ईशान हम चाहते हैं कि तुम हमारे चैनल को ग्रो कर दो एंड वी वांट टू ऑफर यू फुल टाइम पोजीशन. Okay. राइट. तो अ फुल टाइम पोजीशन दे वर पेइंग मी व्हाट द एवरेज पैकेज ऑफ माई कंप्यूटर साइंस 20-25 lakhs. in my college, right? So they were paying me about that amount, right? So that was the offer I got. तो मुझे ऐसे 2-3 कंपनी से मिला. All of them were coding edtechs. तो at that point I was like यार, या तो I can just work with one company and I can help them grow, or I can get people together, build a company and work with all of these Makes sense. together. And I would be able to deliver more, offer more value to multiple people, and I would be able to learn a lot, right? तो पिछले 1 साल में I took the path of the most resistance. सब कुछ जैसे हार्ड चीज़ें कर रहा था, राइट. तो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई टू डू दिस, देखते हैं क्या होता है. तो उसी टाइम पे आई थिंक 2021 के जनवरी में आई कॉन्टैक्टेड सारांश. उस टाइम पे लॉकडाउन था, सो ही वाज एट हिज हाउस डूइंग समथिंग और द अदर, लर्निंग टू कोड एंड ऑल. तो मैंने बोला यार ये स्टार्ट करके देखते हैं. एंड ही ऑल्सो हैड हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग. तो उसने एक्सपीरियंस था उसका थोड़ा सा. तो मैंने बोला कि लेट्स ट्राई टू डू समथिंग हियर. आई न्यू अबाउट यूट्यूब, मैंने ग्रो किया था अपना यूट्यूब. तो आई वाज लाइक लेट्स बिल्ड समथिंग हियर. तो फिर हमने बैठ करके बूटस्ट्रैप पे जाकर एक सिंपल सी वेबसाइट ली, उसको हमने मॉडिफाई किया. वी आस्क्ड, मेरी जो बहन है, शी इज़ इन 10th grade right now, उस टाइम पे 7th या 8th क्लास में थी. तो उसने मार्केटअप का लोगो बनाया एंड तब से शुरुआत हो गई. मार्केटअप का नाम ने बहुत ज़्यादा सोचा, सर्च किया जगह जगह पे, मतलब मार्केटअप, लेट्स गो विद मार्केटअप. So that was the story of MarketUp. I uploaded a post on LinkedIn saying कि यार I want to start an agency, इसमें मैं लोगों को help करूँगा with YouTube organic. Our goal was that कि we believe companies can grow organically. Right. They don't always need to spend money on ads. There is a space for ads, but not always.
राइट आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे यूट्यूब पे एंड ऑल दैट, दे आर नॉट वर्किंग एज वेल एज दे कुड. अगर वो शेयरेबल कंटेंट बनाए कंपनीज तो फिर अ लॉट ऑफ वैल्यू कैन बी टेकन फ्रॉम दैट. तो दैट वाज आवर थीसिस. हमने फिर स्टार्ट किया, एक लिंक्डइन पोस्ट डाला, उससे वी गॉट आवर फर्स्ट क्लाइंट विच इज स्टोआ. started working with them. उसके बाद never look back, tons of clients आते थे. तो we spent zero on marketing in MarketUp, right? It was all through. It was your channel basically. Exactly. तो लोग क्या करते थे? They used to reach out to me for brand deals की यार ईशान प्रमोट कर दो हमको अपने चैनल पर, and that was a great traction channel for me, right? तो what I used to do is I used to do the deal with them, and then I used to offer them कि यार why not I help you with your YouTube, right? आप इन्फ्लुएंसर को पे कर रहे हो, इससे अच्छा कि आई कैन हेल्प यू ग्रो योर ओन चैनल. सो दे वर लाइक ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू गेट ऑन द फर्स्ट फ्यू कॉल्स, एंड उस तरह से वी गॉट स्टार्टेड. एंड अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मार रहा था साथ साथ कि चलो ब्रांड डील्स नहीं मिलेंगे अब. नहीं, बट दैट इज व्हाट एवरी क्रिएटर शुड अंडरस्टैंड. एवरी क्रिएटर शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यूट्यूब इज नॉट अ वेरी लॉन्ग करियर. You should build something. 5 years at max, unless you know how to reinvent yourself like Tanmay Bhatt. So what you need to do is think about how can you set up a business that works along with the Makes sense. creator journey that you have. तो अगर वो आपने unlock कर लिया तो then बल्ले बल्ले हैं फिर. ये तो हो गया ये पूरा ईशान वाला साइड. लाइक व्हाई डिड यू जॉइन मार्केटअप बेसिकली, एंड तुमने अपनी यू डिड एन इंटर्नशिप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट हॉटस्टार, राइट? यू लेफ्ट दैट एंड यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ मार्केटिंग. पूरा लाइक इट्स टोटली ऑपोजिट रोल. जो भी कॉलेज में पढ़ा है, जो भी कुछ किया है, इट्स नॉट रिलेटेड टू इट. एंड है ना, एंड पेरेंट्स को भी लाइक कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आई नो योर ब्रदर इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो दे नो क्या होता है सब कुछ, एंड यू कन्विंस देम एंड यू स्टार्टेड दिस. So back in 2016, मैं 11th class में जब मैं था, तो I started creating memes. That is how I got introduced to this part of the industry, right? And वहाँ से I started getting into communities, Facebook communities में बहुत सारे लोगों से मिलने लगा, बातचीत करने लगा. That is how I got introduced to blogging. That is how I got introduced to SEO, domains flip करना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी. After that, I got in touch with a lot of interesting people, right? So one of them is Ashu Gandhi, who is also a marketer right now. One of them is Akash Sharnarthi. He has a D2C company. Now, 11th, 12th करने के बाद I went to Kota. Kota से वापस आके I decided कि ठीक है, I'll help Akash with his D2C company के ads. Right, so I was keeping an eye on everything कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है. So that is how I started getting some hands-on knowledge. अब वो knowledge जो मैंने थियरी में सीखी थी पिछले 2-3 सालों में, वो मैं अप्लाई कर रहा था. So that is how it started. उसके बाद फिर कोविड आ गया, and there was this company, it was a bootstrap company, very small company. उनको एक social media manager चाहिए. Okay. So a friend reached out to me and he told me that ये opportunity है, and that is how I started interning there. नाउ दिसंबर में वो इंटर्नशिप खत्म हो गई थी. ओके. एंड जनवरी में मैं खाली बैठा था कि अब मेरे को क्या करना है पता नहीं, देखते हैं. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, ये चीज़ साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट मेक्स अ लॉट. दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था. लाइक यू हैड पूरा इस साइड का लाइक टेक्निकल नॉलेज प्लस लाइक स्केलिंग अप अ ब्रांड थोड़ा सा, एंड दिशान तो को तो था ही एक्सपीरियंस. सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे. इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ other offerings that we also had. हम लोग मीम मार्केटिंग ऑफर कर रहे थे, बट लेटर ऑन वी डिसाइडेड दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ लेबर. रिमोटली वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है. इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड मार्केटअप, आई थिंक 15-20 दिन तक पापा को मैंने बताया भी नहीं कि ये मैं कर रहा हूँ. मैंने मम्मी को चुपके से जाके बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है. तो मम्मी ने एक बार ऐसे ही पापा के सामने बात छेड़ दी. तो दैट इज़ हाउ पापा को ये चीज़ पता चली. एंड पापा ने मेरे को, आई डिस्टेंटली रिमेंबर दैट, ये चीज़ बोली थी कि ऐसा ना हो कि तुम ये चीज़ करने के चक्कर में अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपना एंड वो हो गया फिर बात. माइंड डाइवर्ट करो और तुम्हारा CTC उसकी वजह से कम लग जाए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना पड़ जाए. and a few years down the line मैंने placement छोड़ दी just to do this, right? So that is how it eventually changed. It wasn't like कि मैंने एक पॉइंट पे जाकर के बोल दिया कि ऐसा है. बट कैसे छोड़ दी प्लेसमेंट यार, ये तो समझ नहीं. अगर मेरे को CS मिलता तो सब चीज़ें करता ही नहीं, ना YouTube करता, ना ये एजेंसी करता. तूने मतलब ईशान, तूने तो ये इसलिए स्टार्ट कर थे ना बेसिकली बिकॉज तेरे को इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं था, एंड यू डिडंट हैव एनीथिंग. कि मेरा प्यार इंतकाम देखेगी बेसिकली. CS
नहीं, आई थिंक ठीक है, इट मेक्स सेंस. मेरे को इंटरेस्ट था एक पॉइंट पे, बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक चीज़ होती है जिसमें मज़ा भी आ रहा है, एक चीज़ होती है जो काम जैसा लग रहा है. तो कोडिंग काम जैसा लगता है, वेराज ये मज़ा आ रहा था, राइट. इट जस्ट केप्ट गोइंग विद द फ्लो. तो फिर वैसे चीज़ें बिल्ड करी. एंड हॉटस्टार ने एक चीज़, सो बेसिकली द थिंग वाज कि हॉटस्टार में पीपीओ उन्होंने फ्रीज कर दिया था. सो बेसिकली हायरिंग फ्रीज हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ख़राब सीन चल रहा था. तो इट बिकेम इवन ईजियर फॉर मी. अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई पीपीओ तो मिलने वाला है नहीं, मिलता तो 32 लाख का मिलता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ी हो जाती. अब मैं सोचा कि भाई प्लेसमेंट ड्रॉप कर देते हैं. सो बिट्स हैज़ दिस पॉलिसी कि अगर तुम किसी कंपनी में कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो फिर द प्लेसमेंट सेल वुड स्टिल हेल्प यू 2 साल बाद तक, राइट. सो मैं 23 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो मेरे को 25 तक वो लोग प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर मेरे को किसी मोमेंट पे लगा कि अच्छा मेरे को प्लेसमेंट चाहिए. गॉट इट. देन इट्स गुड. मतलब ऐसे कुछ तुमने ड्रॉप नहीं किया, यू स्टिल हैव दैट ऑप्शन. दोनों बोर्ड में पैर डाल के बैठा हुआ है. बट एट द सेम टाइम मैंने जब ये चीज़ प्लेसमेंट सेल से बात करी, राइट, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताया. एंड द स्टेटिस्टिक इज नॉट वेरी कन्विंसिंग. उन्होंने बताया आज तक कोई बंदे को प्लेसमेंट ऐसे मिली है नहीं. बट किसी ने शायद ट्राई भी ना करो, किसी ने शायद ट्राई नहीं किया. बिकॉज स्टार्टअप एक बार 2 साल रन कर लिया, सो मे बी दे डोंट इवन नीड अ प्लेसमेंट. वो कुछ ना कुछ और अपना ढूंढ लेते हैं. मेक सेंस. ये मतलब ठीक है, अब तसल्ली के लिए तो है मेरे पास कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, बट आई डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. नहीं होगा. दिस इज योर ओनली प्लान. Right. No plan. So how big is your team right now? Like how many people are working? कौन से roles में do you have people under you? तो अभी टोटल 25 लोगों की टीम है, जिसमें से 5 लोग फुल टाइम है और साथ में 2 लोग हैं. हमारी एक डिस्कॉर्ड सर्वर है मार्केटअप एक्स के नाम से, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको फ्रीलांसर बनना है या फिर अपस्किल करना है वहाँ पे जाते हैं. उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे. 50,000 लोग हैं उसमें. सो वी हैव अबाउट 2 पीपल हैंडलिंग दैट. उसके अलावा बाकी सारे आर फ्रीलांसर्स वर्किंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टर्म. So that is basically who they are. The people that we've hired, they are basically channel managers, program managers, you can call them. So they cater to every single client that we have. And basically content strategy banana, फिर उसके बाद title ideas, descriptions, SEO, and then actually executing the videos, checking all the edits that editors are doing. तो उस तरह के सारे जो operations वाले task हैं are handled by them. Got it. So how many clients do you have right now? Like total एक ballpark number, not exact. अगर पिछले महीने पूछते तो नंबर काफ़ी कम होता है एंड थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता. बट थैंकफुली अभी 1-2 महीने से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं प्रॉपरली हम लोग. तो आई थिंक 11 और 12 हो गए अभी तो. Somewhere around 10 पहले वी हैड लाइक 5-6 पिछले महीने तक. बट नाउ इट इज गॉटन मच बेटर. तो बेस्ट टाइम टू रिकॉर्ड पॉडकास्ट. So what's the average that you like charge per client? It's about 1 to 1.5 lakh. Depends on what deliverable we have. तो कुछ client, तो basically we have a standard package of end-to-end YouTube management. Okay. जिसके अंदर we help them with everything. Scripting से लेकर के editing हो गई, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द वीडियो, सब कुछ चेक. मतलब उनको बस रिकॉर्ड करना है, सब कुछ होगा तो आप करोगे. They don't have to take care of anything else. उनका पूरा headache we take care of and they just need to record. The way we pitch it is that अगर आप content पूरा end to end खुद से manage कर रहे हो, even if you have a video editor with you, it will take you 150 hours on a monthly basis. Makes sense. Basically workflow जो रहता है पूरा we help them set that up. Right. And अगर हमारे साथ करोगे तो फिर it reduces to 12 hours. So that is our. You just have to record the video and बाकी हम सब करेंगे. Last में एक बार बस check कर लो if everything is fine and just upload it. Exactly. Makes sense. सही है. So अब what are the next plans? Like how are you planning to scale it? Because it's a agency business, right? Agency business को scale करना is a little difficult. एक point के बाद you will have to horizontally scale it, right? और लोग ऐड करते जाओगे और एजेंसी आते जाएंगे, बट उनको फिर और हैंडल करना डिफिकल्ट होगा. हैंडलिंग अ 5-member team is मतलब comparatively easier than handling a 25-member team. अब हर बंदे के पास 2 चैनल है, 50 चैनल्स तुम हैंडल कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा क्लाइंट्स कौन से हैं. So what are your plans? So that is the problem with agencies, right? As we scale, वो vertically expand होते जाता है, manager का manager. So that is of course a problem. Sounds like MLM scheme. So हाँ, exactly. So the way to tackle that is हम लोग थोड़ा ticket size पे optimize करें. First of all, that has been our focus since I think
6 महीने बाद हमको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि हम लोग छोटे क्लाइंट्स नहीं उठा सकते, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. उसके अलावा वी नीड टू सेट द प्रोसेसेस वेरी डिस्टिंक्टली कि अच्छा ये चीज़ें करेंगे हम लोग, एंड कुछ भी दिक्कत होती है तो कैसे क्या करना है. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट, राइट. सो क्रिएटिंग SOPs की ये चीज़ें करनी है. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस आउट अ लॉट, एंड बाकी एज इट कम्स हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको करने की जरूरत अभी है. दैट इज अ बिग क्वेश्चन वी आर आल्सो वंडरिंग ऑफ, बट आई थिंक दैट कि अगर हम सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लें, इफ वी फाइंड क्लाइंट्स हु पे अस proportional to the effort we put in, तो फिर it works very well. I think we can easily scale it to like $100,000 a month type of a thing. $1 की तो बनती है एजेंसी आराम से, एंड उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट कि क्या करना है. बट इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि वी आर हैविंग पॉजिटिव कैश फ्लोज, राइट. तो वी आर हैविंग प्रॉफिट्स एवरी सिंगल मंथ विच वी कैन डिप्लॉय इनटू स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स. तो फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड दिस वन थिंग जो भी आगे डेवलप नहीं हो पाई, कॉल्ड एज सेंटोरा. AI टूल था वो, विद विच यू कैन बेसिकली टर्न एनी यूट्यूब वीडियो इनटू समरीज, एंड यू कैन आस्क एनी डाउट यू हैव अबाउट दैट यूट्यूब वीडियो टू द चैटबॉट इटसेल्फ. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, IIT JEE UPSC, तो विद दैट टूल यू कैन लर्न इट एंड यू कैन क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. दैट वाज द बीटा प्रोडक्ट दैट वी लॉन्च्ड. वी वांटेड टू वर्क ऑन दैट मोर, कुड नॉट बिकॉज ऑफ सम ऑपरेशनल रीजंस, तो वो थोड़ा होल्ड पर है. अभी भी लोग यूज़ करते हैं उसको, बट वी वांट टू बिल्ड मोर सच प्रोडक्ट्स. उसके लिए थोड़ा सा वील हैव टू फोकस ऑन हाउ कैन वी ऑटोमेट ऑल द प्रोसेसेस. अभी भी हम लोग बहुत सारे काम खुद करते हैं मार्केटअप में, तो थोड़ा ऑटोमेट करके टाइम फ्री होगा, वील अप डिप्लॉय ऑन launching new indie products. Got it. So, next question is related to freelancing. Basically, if someone wants to start freelancing in 2024, what all things they should like know beforehand and किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए basically? Freelancing start करनी है अगर आपको, first of all you need to understand that the market is saturated. Yes, 2024 में बहुत सारे लोग हैं, and अगर आपको मार्केट में एंटर करना है, डिस्टर्ब करना है, so you need to have a interesting proposition. राइट, कि आप वॉट न्यू आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये इंस्टाग्राम पे देखे हैं तो आजकल बहुत सारे ऐसे एनिमेटेड रील्स का जमाना आ गया है, राइट. तो बहुत सारे AI नहीं, एनिमेटेड रील्स, तो दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एनिमेशन, से वाइट लाइंस आती हैं, फिर दे आर सम एनिमेशंस वहाँ पे, तो आफ्टर इफेक्ट्स यूज करके बनता है वो. तो दैट इज अ न्यू फील्ड, राइट. तो आई वेंट टू फाइवर, मैंने सर्च किया हाउ कैन यू मेक डैनको टाइप रील्स. तो उसमें बहुत सारे लोग हैं एंड दे आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट. दे वर चार्जिंग 3,000 रुपीज़ फॉर 30 seconds ऑफ एडिट. 3,000 रुपीज़ फॉर 30 seconds ऑफ एडिट ऑन दोज रील्स. एंड मैंने उसको देखा 10 ऑर्डर्स इन क्यू ऑन फाइवर, एंड मैंने किया साइन अप. लाइक आई वांट टू सी कैसे काम करते हैं ये लोग. अमेजिंग वर्क, बहुत अच्छे काम किया उसने. शी वॉज लाइक वर्किंग इन पोलैंड और समथिंग. इमीडिएटली 3 दिन में आ गया, आई सेंड द ऑडियो और वो बन के आ गई वीडियो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी, कि वॉट इज न्यू, वॉट इज ट्रेंडिंग, एंड हाउ कैन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. तो इट इज़ दैट. अगर आप एक टिपिकल वीडियो एडिटर हो जो बाकी सब लोग हैं, तो फिर विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू डिफरेंशिएट एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज. तो ये तो गया वीडियो एडिटर के बारे में, बट द आइडिया इज ग्राफिक डिजाइन, UX डिजाइन, और भी सारी फील्ड है. फाइंड दैट पर्टिकुलर नीश जिसके अंदर आप घुस के डिस्टर्ब कर सकते हो. AI टूल्स को यूज़ करना सीखो. एंड बेसिकली आपका, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि दे डोंट हैव टू बी इन द वीडियो, एंड फिर भी वीडियोज उनकी रिकॉर्ड हो जाती हैं. सो AI एवेटार्स, राइट. तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, इफ़ यू कैन गो टू देम एंड से कि आई विल वॉन्ट योर 2 to 5 hours, I'll record videos of you, and फिर आपको कभी भी अपने YouTube पे वीडियो के लिए खुद आना नहीं पड़ेगा. आपकी सारी वीडियोस मैं हैंडल कर लूंगा. जस्ट आई नीड योर 5 to 10 hours, and then your time is saved. That value proposition to someone who is in US, UK, who values their time, which people in India do not, that is a good opportunity, right? तो इस तरह से चीज़ें अनलॉक करेंगे तो lot of things can make sense. I think one more reason why people fail to become a freelancer, right, successfully, is that I think that freelancing is a very sales intensive problem, right? Skills सीखना आसान है, it is more straightforward, there are steps to it, you can just follow it. Sales is very ambiguous, right? There are different ways, there are different options, but sometimes they work, sometimes they don't, right? So I think one very important thing is that when you're starting out, right, अगर Fiverr, Freelancer, Upwork जैसे प्लेटफॉर्म से शुरू कर रहे हो, तो फिर first of all it should be relatively cheaper, right? You need to have a portfolio. Portfolio doesn't need to be
a paid work, right? It can be something that you just created for the heck of showing people, right? That is there. And one more important thing is go very niche, right? So कई लोग क्या करते हैं Fiverr पे, they don't say that I'll edit your video, they say I'll edit your wedding video, I'll edit your birthday video, right? Things like that is something that people should focus on, because in that case you're not competing with the masses now, right? बहुत हाँ, and people don't search for video editing, they search for use case oriented services, right? So for it makes more sense, and I think it is a more beginner friendly way to start. Got it. But एक इसमें you said ना कि थोड़ा price cheaper रखो. I have a question for both of you. So generally price war is not the right way to go ahead, right? You should have a better product in general, or you should provide better services rather than getting it cheaper, because कोई और बंदा आएगा वो तुमसे भी सस्ता देगा तो your client will jump to that basically, right? So what is your point on, like? I think it is more of a visibility thing, right? So when you are starting out, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी खराब करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइसेस कम रखो ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो, राइट? जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आई बिलीव अमेजोन पे जाकर के आप हाई टू लो नहीं सर्च करते हो प्राइस में, राइट? यू सर्च फॉर लो टू हाई, एंड देयर इज अ रीजन टू दैट, बिकॉज देर आर इंस्टेंसेस व्हेन पीपल डोंट वांट टू कमिट अ लॉट ऑफ प्राइस टू एनी पर्टिकुलर गिग, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ ऑडियंस यू नीड टू केटर टू, बिकॉज वो आएंगे, वो तुम्हारी सर्विसेज लेंगे, ठीक है, यू डिडंट मेक अ लॉट ऑफ मनी बट you got a 5-star review, and that is the important part to it. I think Ishan interviewed Asil in one of his podcasts, right? His story was exactly the same. His USP was that he was doing it for very cheap price, and there were unlimited revisions. So he was a freelancer on Fiverr, video editor था. Yeah, and he started that way, and आज की डेट में he's making 8 to 10 lakhs a month just from the video editing gigs. So I think that is the way to go. इसमें ये समझने वाली बात है that you don't say कि अगर मार्केट 3000 रुपीज़ चार्ज कर रही है किसी वीडियो एडिट का, तो आई विल चार्ज 500 रुपये, 1000 रुपये. यू से दैट माई चार्ज इज 3000 फॉर यू स्टार्टिंग आउट, आई विल डू इट फॉर 1000 रुपीज़ पर एडिट फॉर 1 month, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट. तो उससे that does not degrade your quality, that tells कि I want to work with you, hence the discount, not because मैं सस्ता काम ऑफर कर रहा हूँ, राइट? सो यू क्रिएट एन इनवॉइस, वहाँ पर लिखा रहेगा 3000 इज द कॉस्ट, आप 10 वीडियो कर रहे हो, 30,000 रुपये लग रहे हैं, बट आप वहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है नीचे, राइट? तो वहाँ पे डिस्काउंट आकर के फिर 10,000 रुपीज़ लग रहे हैं, राइट? तो फिर व्हेन यू शो दैट थिंग, पीपल वैल्यू यू मोर. Makes sense. One more thing was that जब हम लोग काम करते हैं, right, we ask for a minimum video commitment, right? If there's a company, we tell them that okay, you need to make at least 12 videos a month so that we can give you growth. Plus we can show results, na? Basically, Exactly. if you cannot compete on the price, compete on the terms, on Right. the agreements. For example, कुछ client अभी हमको बोल रहे थे कि you know, can we do for some price lesser than this? You're like, ठीक है, we'll do like a 3-month deal, 6-month deal. So you pay us 6 months upfront. Right. So they were like, ठीक है, that makes more sense. And the thing was that I was saying, right, कि we ask for at least 12 videos का commitment. What we sometimes do is we incentivize them to make more videos than 12, right? 12 के ऊपर videos बनाई तो फिर हर उस video पे 10% discount extra, right? So that is how we incentivize, because if you make more videos, it doesn't only give us more money but also more scope to make you grow, right? So that is how it works. So thank you so much for your valuable information. काफी interesting होगा for people who are starting out their agencies or starting out their freelancing journey. They would have learned a lot of things, and do check out Ishan Sharma obviously. And if you are a brand basically and you want to grow your YouTube channel, check out MarketUp. And thank you so much. Thank you so much for watching, guys. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नोट डाउन करो and execute करो. And like, share, subscribe. Obviously. चलो. Bye.